एक प्लांट मिलता है उसको हम बोलते हैं पेंटा डिप्लैंड्रा ब्राजियाना। सो उस प्लांट में से एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम ब्राजीन बोलते हैं। इस प्रोटीन की एक बहुत स्पेशलिटी ये है कि इट इज अ वेरी लो कैलोरी स्वीटनर, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट ये जो ब्राजीन प्रोटीन है इट इज अबाउट 2000 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर, मतलब जो जो हम नॉर्मल शुगर कंज्यूम करते हैं उस शुगर के कंपैरिजन में दिस ब्राजीन प्रोटीन इट इज एक्चुअली अबाउट 2000 टाइम्स स्वीट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट इज लो कैलोरी, इट इज लो ऑन कैलोरीज, ठीक है। So recent developments have actually shown, it shows that the isolation of the gene which encodes the brazine protein and it has been sequenced and patented in USA. So again, this is an example of biopiracy because ये जो plant है that is actually present in Africa and it should have been used by the people of Africa only. But on the other hand, rather it has been used and it has been patented by USA. So this is again an example of biopiracy. ठीक है. So I'm writing one more example. Patenting of the Azadirachta indica neem. Ancient times से सभी को पता है कि नीम इंडिया में कब से यूज किया जा रहा है, लाइक टर्मरिक. नीम के भी there are innumerable uses and the Indians have been using this neem for various purposes through along the billions of years, ठीक है. लेकिन 1994 में अगेन फिर से यूएस की एक कंपनी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, एक यूरोपियन पेटेंट रिसीव किया जिसमें which said that it includes all the methods which are used for controlling the fungal infections in plants by using a composition extracted from neem. मतलब कि जो नीम है, नीम मैंने जैसे पेटेंट बताया, पेटेंट इज एनीथिंग कि आप कोई नई डिस्कवरी कर रहे हो या फिर उससे कोई भी प्रोडक्ट को डिराइव कर रहे हो, ठीक है। तो टेक्निकली तो जो नीम है ऑब्वियसली इंडियंस इसको बहुत सालों से नीम को यूज कर रहे हैं, बट एक यूएस की कंपनी ने क्या किया, दे डिराइव द पेटेंट राइट्स। और पेटेंट राइट्स कैसे डिराइव किए, उन्होंने इस नीम को यूज करके कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन क्रिएट किया विच कैन बी एक्चुअली यूज एज अ इंसेक्टिसाइड और टू ट्रीट द वेरियस फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। सो जो उन्होंने कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया, तो उस कॉम्पोजिशन को दैट यूएस कंपनी एक्चुअली गॉट इट पेटेंटेड. And so again, it is an example of biopiracy because it rather it should have been because it is an original source of India. So इसके जो rights है वो इंडिया के पास में actually रहने चाहिए थे, but it has been granted to US. So this is an example of biopiracy, ठीक है. So biopiracy में आपको 2-3 examples करने हैं plus the definition. So जो last example I'll write it down. तब तक in the meanwhile you can write down from here.
मैम ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा। रुको। अभी ठीक है? अभी इज इट विजिबल और या फिर से कुछ चेंज करूं? मैम बराबर है। ओके। कंप्लीटेड? मैम लास्ट पैराग्राफ। मैम राइट साइड वाला बाकी है।
completed? हाँ मैम. So with this, your ecology, sorry, जो biotechnology, it actually gets. And now we'll start a completely entirely new unit which is ecology. ठीक है, तो ecology में आपको दो chapters करने हैं. One is the organisms and population and the other is the biodiversity, conservation and its resources. ठीक है, so आज हम first chapter के साथ start कर रहे हैं which is the organisms and population. organisms and populations. ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे करने पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी. ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए. जो इकोलॉजी वर्ड है इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जिसमें ग्रीक वर्ड किस कौन सा ग्रीक वर्ड, इट इज derived from the Greek word which means oikos, which actually means home, and logos, it means study. Okay, so ecology, it has been actually derived from a Greek word oikos, which means home, and logos, which means to study. So ecology क्या होता है, it is actually a branch of biology जो किसके साथ डील करता है, with the interrelationship amongst the organisms and the its interactions between the organisms and their environment. Suppose हम we as human beings, we are actually the organisms. So ecology क्या है कि जो हम organisms के बीच में interactions हैं, living organisms means all the living organisms. जो भी living organisms इस earth पे present है, be it the human beings, be it the animals, be it the plants or be it the tiny animals like the prokaryotes, zooplankton, phytoplankton, जितने भी living organisms इस earth पे present हैं, so the interactions between or the interrelationship amongst all those organisms, all those living organisms and their interaction with their environment. ठीक है, so एक तो खुद के organisms के बीच में जो interaction है plus the interaction with their abiotic factors. Abiotic factors मतलब कि जो environment में जो abiotic factors present है उनके साथ में जो इनका interaction है, इन सब को sum up करके हम एक फील्ड या एक कंप्लीटली सेपरेट फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. ठीक है, सो फर्स्टली आई राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी. अच्छा, सबसे पहले तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज गिवन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो टर्म इकोलॉजी है वो किसने दी थी. व्हेन it was actually coined by a scientist known as Ernest Haeckel. So the scientist is Ernest Haeckel. ठीक है, so he was the one who actually gave this term ecology. So now we'll define ecology. It is a branch of biology. It is a branch of biology which deals with the interrelationship amongst organisms and their interactions
organisms and their environment. The organisms and their environment. So this is how you define ecology. So सबसे पहले जब ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हो सबसे बेसिक चीज पता होना जरूरी है जो टर्म इकोलॉजी है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है. दिस टर्म इकोलॉजी हैज बीन given by Ernest Haeckel. And how do you define ecology? So ecology is actually a branch of biology which deals with the interrelationship amongst the organisms and their interactions between the organisms and their environment. So simple सा definition है. अच्छा एक उससे पहले एक चीज कि जब अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी हमारा environment है उसमें सबसे पहले जो simplest या tiniest component है that is the micro or the macro molecules. ठीक है. अब ये माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? दे एक्चुअली फॉर्म अ सेल. सेल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू. टिश्यू कंबाइन करके दे विल फॉर्म एन ऑर्गन. ऑर्गन्स कंबाइन करके दे विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करके क्या बना लेंगे? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अभी तक हम ये सब इतना पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो सभी कंबाइन करके क्या बनाते हैं? दे एक्चुअली form the cells. Cells combine to form the tissues. Tissues combine to form the organs. Organs in the organ system and then the organisms. ठीक है. So ये सब अभी तक हम पढ़ चुके हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? We call this particular point we call it as the lower level of organization. ठीक है. So these are actually the lower level of organization. फिर बाद में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? दे एक्चुअली फॉर्म अ population and a group of populations they will form a community. बहुत सारी communities कंबाइन करके क्या बनाएंगे? They will actually form the ecosystem. And the various ecosystems they actually combine to form biome, and biomes combine to form the biosphere. ठीक है. ऑर्गेनिज्म तक यहाँ तक तो हम ऑलरेडी अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सब सिस्टम्स या जो सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं वो सब कंबाइन करके दे एक्चुअली मेक अप एन ऑर्गेनिज्म. बट व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म when various similar such organisms are present तो उसको हम population बोलते हैं. Population combine करके forms the community, then community combines to form the ecosystem, and then ecosystem के बाद क्या बनता है? Ecosystem के बाद there is this biome, and then eventually there is this biosphere. ठीक है. So this we have already studied. अच्छा अब यहाँ तक तो organism तक तो ये क्या बनाता है? Lower level of organization. And population के बाद it actually forms this. This is the higher level of organization. इसको actually आपको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखता है जैसे वो नहीं लिखते हैं kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. उसको वैसे लिखना है. मेरे पास तो स्पेस नहीं था इसलिए I had to write it this way. Otherwise आप लोग नोटबुक पे अपने एग्जाम्स में उसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे. लाइक यहाँ से माइक्रोमोलिक्यूल्स, then the cell, then tissue, then organ system, organism, population, community, ecosystem, biome, and then the biosphere. ठीक है. So इसको आपको ऐसे लिखना है. So these are the various levels of hierarchy. Hierarchy मतलब कि various grades of organization. So अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? We have actually studied we have completely studied the lower level of organization. So lower level of organization means कि all these particular components they combine together to form an individual or an organism. ठीक है. So the name of the chapter is actually the organisms and the populations. So we are basically going to focus upon these two. So organism जो चीज है that is an organism is actually falling in this lower level of organization. And then when we study a group of organisms, similar organisms, we rise to a higher grade of organization which is actually the
population. So we will be studying these two levels of organization mainly in this particular chapter. ठीक है? So ये सब अच्छा ये सब छोटी मोटी टर्म्स तो आप डिफाइन कर लेंगे. बायो पॉपुलेशन को तो कैसे डिफाइन करते हो? पॉपुलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक स्पीशीज है. इसी तरह टाइगर्स भी एक स्पीशीज है, तो वो सभी एक पॉपुलेशन फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है? कम्युनिटी मीन्स कि बहुत सारे ऐसे ही सिमिलर मतलब बहुत सारी पॉपुलेशंस कंबाइन हो रही है किसकी, डिफरेंट स्पीशीज की. फॉर एग्जांपल प्लांट्स की कंबाइन हो रही है, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की. ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है वो जब कंबाइन करती है तो दे एक्चुअली फॉर्म अ कम्युनिटी. ठीक है? और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स की बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब कि चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, we include those biological components plus the physical environment. Physical environment मतलब कि all the abiotic factors. Abiotic factors तो आप समझ गए ही हो. Abiotic factors मतलब कि the light, temperature, sunlight, air, all these things they actually come under the abiotic components. So ecosystem में क्या होगा कि all the abiotic factors plus the biological world, इनके बीच में जो interactions है they all come under the ecosystem. ठीक है? बायोम क्या होता है? बायोम मतलब कि जैसे सभी ने वो सुना है, क्या नाम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. देयर इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. वो सभी क्या है? वो एक पर्टिकुलर एरिया है, एक अर्थ का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो एंटायरली डिफर करती है. फॉर एग्जांपल आर्कटिक एरिया में जाते हैं, आर्कटिक या अंटार्कटिक में जाते हैं, तो वहाँ पे जो कंडीशंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो फ्रीजिंग कंडीशंस है. ठीक है? वहाँ पे एक्चुअल में टेक्निकली किसी भी एनिमल का सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है? सो वो क्या बनाता है? बायोम. एंड बायोस्फीयर मीन्स कि सब कुछ जितना भी कुछ इस अर्थ पे प्रेजेंट है दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर. मतलब चाहे आप उसको फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिडर कर रहे हो, लैंड, वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट इवन द टाइनीएस्ट पार्टिकल जो इस अर्थ को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो सब मिला के क्या बनाएगा? दैट इज एक्चुअली द बायोस्फीयर. ठीक है? इस चैप्टर में हमको दो चीज पे मेनली फोकस करना है, विच इज द ऑर्गेनिज्म एंड द अदर इज द पॉपुलेशन. ठीक है? इस चैप्टर में जनरली ये करने के बाद हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स और जो वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके जो मतलब इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे क्या रहते हैं, वी एक्चुअली स्टडी दैट. बट आपके में पोर्शन में वो कट किया हुआ है, सो हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि एक इसमें टॉपिक है व्हिच इज द रेगुलेटर्स एंड द कन्फर्मर्स. ठीक है? सो इतना नोट डाउन करो एंड देन we'll move on to the next, which is the thermoregulators and the thermoconformers. मतलब ये इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि जैसे जो एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसको बहुत सारे इफेक्ट्स टॉलरेट करने पड़ते हैं. इफेक्ट्स जैसे कि इफेक्ट्स दे कैन बी लाइक द सनलाइट, it can be the harsh environmental conditions like there could be storm, there could be rain, there could be cold, there could be heat, hot, सब ये सब weather, सभी conditions the that organism has to actually face or it has to go through. ठीक है? अब how does any organism actually tolerate these abiotic factors? तो उसके लिए हम किसी भी organism को दो particular कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है, एक को तो हम बोलते हैं रेगुलेटर्स. मैं एक काम करती हूँ, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आई मेक यू राइट इट डाउन टुमारो. ठीक है? सो एक होता है रेगुलेटर्स और एक होता है कन्फर्मर्स. ठीक है? अब रेगुलेटर्स मतलब कि जिनकी वो जो बॉडी कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कंडीशन. ठीक है? मतलब जैसे कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो जब हम बोलते हैं तब स्पेसिफिकली जनरली हम टेम्परेचर की बात करते हैं, बट जो रेगुलेटर्स है वो और भी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल
जो बर्ड्स एंड मैमल्स, सो वो बर्ड्स एंड मैमल्स अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी हैव sorry, we have the capability to maintain our internal body temperature to 37 degree Celsius. ठीक है, हमारा जो internal body temperature है that is actually 37 degree Celsius. So no matter बाहर का क्या temperature है, whether it is extreme hot or whether it is extreme cold, ठीक है, हमारे पास, हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारे पास वो सब मैकेनिज्म्स हैं या वो सब मीन्स है या हमारी बॉडी के पास वो एबिलिटी है कि नो मैटर बाहर के जो भी कंडीशंस है, वी हैव द एबिलिटी to restrict our body temperature to 37 degree Celsius. ठीक है, therefore we fall under the category of regulators. ठीक है, अब conformers क्या होते हैं? Conformers बेचारे like the poikilotherms, मतलब they actually change their body conditions according to the surroundings. So they adjust, वो adjustment करते हैं, they adjust according to the surrounding. ठीक है, मतलब कि जैसे सपोज बाहर बहुत ज्यादा अगर हॉट कंडीशंस है तो दे विल चेंज, दे विल अडेप्ट themselves according to the extreme hot conditions, and suppose अगर बाहर के conditions if they are extremely cold तो they'll adapt themselves according to those cold conditions. ठीक है, so they, इसीलिए animals, कोई भी हम जो भी organism इस earth पे आया है वो वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस या वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसे डील कर रहा है, तो इसीलिए उसको ईज अप करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. वन इज द रेगुलेटर्स एंड अदर इज द कन्फर्मर. सो अभी तक हम समझ चुके व्हाट आर रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स मतलब कि नो मैटर बाहर के क्या कंडीशंस है, वो ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन कर सकता है. कन्फर्मर्स कौन से हो गए? जो जिनके पास ये मैकेनिज्म नहीं है रेगुलेट करने का, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट को चेंज होते रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में बात करते हैं, क्या कौन? स्नेक्स, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स तो बेटा उसमें आएंगे ना कन्फर्मर्स में, वो तो रेप्टाइल्स है. जो जैसे बर्ड्स और मैमल्स से बेसिकली जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो मेनली रेगुलेटर्स में आते हैं. मतलब कुछ एक दो एक्सेप्शंस होती है बट मेनली रेगुलेटर्स में बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं बिकॉज दे आर हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बाकी सब जनरली दे फॉल अंडर द कन्फर्मर्स. वैसे पता है टेक्निकली जो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं या हम जो बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करते हैं तो हम इवन ह्यूमन बीइंग्स भी कंप्लीटली रेगुलेटर्स की कैटेगरी में नहीं आते. इंस्टेंट हमारे लिए जो एक वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर या स्पेसिफिक होता है वो होता है पार्शियल रेगुलेटर्स. समझ रहे हो बात को? कि मेरे अकॉर्डिंग वर्ड रेगुलेटर यूज करना इज एक्चुअली रॉन्ग. पार्शियल रेगुलेटर्स बिकॉज समझो अगर बाहर की कंडीशंस, सपोज हम आर्कटिक पे चले जाते हैं, ठीक है, आर्कटिक ओशन पे चले जाते हैं, वहां पे सपोज वी आर नॉट हैविंग एनी कोई भी मतलब कोल्ड वार्म क्लोथ्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एंड देन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे एंड उस ऑर्गेनिज्म या उस ह्यूमन बीइंग को कुछ ना हो, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, अगर आप बाहर की कंडीशंस को बहुत ही एक्सेस कर देते हो तो चाहे वो बर्ड हो चाहे मैमल हो चाहे वो कितना ही एडवांस एनिमल हो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये तो कोल्ड वेदर की बात हो गई. अगर आप बाहर की कंडीशंस बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम कर देते हो, लाइक 50 डिग्री 55 60 डिग्री भी एक्सीड कर देते हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने हार्श कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाएगा. हमने जनरली बर्ड्स एंड मैमल्स को तो इतना वो बोल रखा है कि बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर द मोस्ट सुपीरियर ऑर्गेनिजम्स एंड उनको रेगुलेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, बट अगर सपोज हम मैं बात करती हूँ किसी टाइनी मैमल की, जैसे फॉर एग्जांपल श्रू, ठीक है, या फिर हमिंग बर्ड की मैं बात करती हूँ. अब हमिंग बर्ड क्या है तो बेचारा बर्ड ही, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो हमिंग बर्ड है वो तो टाइनीएस्ट और द स्मॉलेस्ट बर्ड होता है. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट बर्ड है तो उस बेचारे बर्ड का साइज ही इतना छोटा है तो वो क्या तो रेगुलेट करेगा या क्या करेगा, बिकॉज इस आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. मतलब
बॉडी के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा है, यू रिक्वायर एनर्जी फॉर दैट, ठीक है। अब ये जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड का जो इसका जो सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो बहुत लो हो जाता है। बात समझ में आ गई? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मतलब कि सपोज कोई सेल है, ठीक है, सेल के टर्म्स में हम इसको समझते हैं। सपोज कोई सेल है तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो सेल का साइज है वो हमेशा इतना स्मॉल क्यों होना चाहिए? मैं बॉडी के अंदर इतने टाइनी सेल्स रखने के बजाय क्यों ना मैं सेल को मतलब एक मीटर का बना दूं या 2 मीटर का बना दूं, सो दैट कम सेल्स की रिक्वायरमेंट हो और मतलब ज्यादा काम हो जाए, ज्यादा जल्दी काम हो जाए। मतलब नेचर ने ऐसा क्यों बनाया कि जो सेल्स का साइज है वो एकदम इतना टाइनी बनाया है? उसके पीछे का रीजन है, सपोज ये अगर हम 1 mm का सेल कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, एक सेल के साथ एक स्टार्ट करते हैं। सपोज ये 1 मिलीमीटर रेडियस है इसका एक्चुअली, सो दिस इज 1 mm रेडियस सेल, ठीक है। एंड इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमको देखना है। ये सेल है तो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया अगर आपको पता हो तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 4πr², ठीक है। और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। तो हमको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो करना है, तो ये कितना बच जाएगा? 4πr²/4πr³ और ये 3 ऊपर चला गया। कट गया, सो ये कितना आ गया? 3/r आ गया, 3/r रेशियो आ गया।